टॉपिक परमानेंट रखना है। Good morning everyone, Namaskar everyone, and pranam to all respectable faculty members, especially Ansari sir, Jitendra sir, and my guide, philosopher, mentor, Dr. Satish sir, for his valuable suggestions and guidance. This is Archana Singh, Department of Botany, Sindri College, Jharkhand, Dhanbad, going to present on the topic Floral Diversity and Conservation Perspective of Deoghar District of Jharkhand, India. Now, since Deoghar is my native place, abode of Baidyanath Lord Shiva, place of worship, as the name suggests, the place rich in medicinal plants and all varieties of herbs, shrubs, trees of commercial value, jal, jameen, jungle of tribal Santhalis worshipping nature simply for protection and conservation. So I have tried my best to gather traditional and ethnic knowledge from floral resources. Now, as far as the introduction is concerned, biodiversity is much admired term in biological science, and the definition is the variety of all life forms, the different plants, animals and microorganisms, especially the genes. Now here it is not a fixed entity, it keeps on changing, constantly changing, and sometimes it is increased by genetic changes and by evolutionary processes, and sometimes it gets reduced by extinction and habitat degradation. The concept emphasizes the interrelatedness of the biological world. Coming to the next, a brief review of the work already done in this field. Now, since not much, yes sir. जैसे तो सिनॉप्सिस है आपकी, अभी उसका जो करेक्शन होंगे तो सिनॉप्सिस में इनको और रिसेंट ढूंढ लीजिएगा पेपर्स को। जी। और कौन हाँ। सर मैं डाल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। Since not much research is work is available related to Deoghar floral diversity, but apart from old studies which is already given here, let us know few current researches in this field. जैसे कि first one, Global Journal on Bioscience and Technology was published by Kumar Anand on medicinal plant of Jharkhand, Vinoba Bhave Hazaribagh. This is new one. Then T.K. Ghosh in the year 1971 on studies flora of Ranchi. Then U. Guha Santhali Scopes. And then S.P. Gupta in 1963 he studied on an appraisal of Chotanagpur tribal farmer. Then P.P. Hemram, he worked on in 1991, recently, on tribal medicine. So very less. Excuse me, 91 is not recent. Not recent, but there are only very few work has been done on this topic. So very few work has been done on this floral resources of Deoghar. So I have visited few surrounding villages, bastis and villages like, for example, one is Malhara. Malhara is just 6 kilometers away from Deoghar. Varieties of flowers like genda, rose, bela, etc. grown as ornamental and having both commercial and medicinal values. Now, noteworthy contribution in the field of proposed work, especially focusing on bio and ecological indicators, which is not given here. The biological and ecological indicators, poissy, काश के फूल. You know, madam, काश के फूल एकदम सफेद कलर का होता है, जो कि ज़्यादातर वो रिवर बेड्स पे पाया जाता है, और ये क्लाइमेटिक चेंज के लिए, मतलब क्लाइमेट इंडिकेटर्स के लिए यूज़ होता है, और बहुत ही खूबसूरत फूल है, लेकिन ये मेडिसिनल ऑर्नामेंटल के साथ साथ मेडिसिनल इसका वैल्यू भी है. इसमें स्किन एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है. ये सर्चारम स्पॉन्टेनियम वॉइसी के नाम से फेमस है, और ये काश के फूल हिंदी में इसको कहा जाता है. ये बायो इंडिकेटर्स है पोल्यूशन के भी. कुछ और प्लांट्स है लाइक पाइन मिडल विच एक्चुअली tells us about ozone damage, Eichhornia, sewage pollution, Amaranthus and Chenopodium. They mostly grow in the overgrazed area, and then algal bloom shows the water pollution. Sometimes gold indicators are Equisetum species,
and pollution indicators, mainly lichens and काश के फूल and some Butea monospermia, you know that ये पलाश के फूल कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छे मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ये बता दीजिए स्टडी में क्या रहेगा सर? Study area. Study area. Now the study area is देवघर district. क्योंकि यहाँ पे 32 different types of ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि सरना रिलीजन में विश्वास करते हैं और ये सराउंडिंग विलेजेस है देवघर डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे सीएम हेमंत सोरेन ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड हैज़ अनाउंस्ड आई थिंक 4 करोड़ 38 लाख फॉर योजनास फॉर डेवलपमेंट ऑफ दी सरना स्टेट, जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप अराउंड एंड इन एंड अराउंड देवघर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये बहुत पहले से देवघर फेमस है अपनी ज्योतिर्लिंग की तरह के कारण, और वो बैद्यनाथ के नाम से भी मशहूर है। तो बैद्यनाथ तो हम मेडिसिनल वैल्यू शो ही करता है, और ये बहुत शुरू से मतलब दशकों पहले से ही ये कॉन्सेप्ट था, और ये सारे कॉन्सेप्ट आदिवासी को अगर अभी जो 50 ईयर्स से ऊपर है उनको अभी भी उनका नाम पता है कि क्या क्या मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं। तो टोटल विलेजेस जो हैं मैंने स्टडी किया, मैंने इतना स्टडी नहीं किया, मैंने 5-6 स्टडी किया है विलेजेस का, लेकिन टोटल विलेजेस आर 2662, जिसमें मेनली है मलाहरा, मानिकपुर, पुनासी, कोरी, पनाम, मोहनपुर एंड कुंडा डिस्ट्रिक्ट। तो इन सब में आप जितने भी देखोगे ये आदिवासी सरना स्थल के रूप में नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं और उनका वर्शिप करते हैं। वो कोई स्टैचू या आइडल को नहीं शो करते हैं, वो सिर्फ नेचर को वर्शिप करते हैं। सो देवघर क्योंकि ये बैद्यनाथ धाम से और बाबा धाम से बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है फॉर हब फॉर हिंदूज फॉर द बैद्यनाथ टेम्पल, which is one of the 12 Shiva Jyotirling and one of the 51 Shakti Peetha in India. Devghar has an average literacy rate बहुत कम है, लेकिन मेल की ज़्यादा है 74.4% and female का 52.39%. Now objective mainly focus है floral diversity of the selected region, and since not much available exclusive study belong to Devghar district of Jharkhand, India, keeping the focus behind the objective that the area should have documentation of its floral diversity, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर आप पूछिए तो ओरली वो वर्बली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो किडनी को हील करती है, डायबिटीज़ को हील करती है, हमारे स्किन एलर्जीज को हील करती है, बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब सारे ही हैं। आयुर्वेदा के जितने भी मेडिसिन है सब वहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज फ्लोरा, उसको डॉक्यूमेंट करना, टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ लोकल, जो मैंने क्वेश्चनवेयर के रूप में किया है, देन टू असेस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ द स्टडी एरिया, टू फाइंड द थ्रेट्स, क्या क्या वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, क्योंकि आप जंगल काट रहे हैं, लोग वहाँ पे बस रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं, तो उनको थ्रेट है। टू इवैल्यूएट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंक्लूडिंग द रोल ऑफ लोकल पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टडी एरिया। इसमें एक और पीछे करके जी आपकी जो पॉइंट नंबर 2 है, तो इस सर्वे को क्या बोलते हैं जब हम लोकल पीपल से मेडिसिन वैल्यू? सर्वे को फील्ड सर्वे बोलते हैं, और इसमें हम क्वेश्चनवेयर के रूप में और इस पूरे प्रोसेस को एक टर्म बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट में। आप इंडायरेक्टली वो कर रहे हैं। जी जी सर्वे फील्ड सर्वे मैंने एथनोमेडिसिनल स्टडी, एथनोमेडिसिन, यस यस यस। तो आप चाहें तो यहाँ पे टर्म भी डाल सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैडम बहुत हाँ ओके आप बोलिए। तो एथनोमेडिसिन तो आप करेंगे क्या अपनी इस जैसे आपका ऑब्जेक्टिव तो है कि आप सर्वे करेंगे जी, तो जैसे आपको जो सर्वे में पता चलेगा तो क्या आप कुछ प्लांट्स की एथनोमेडिसिनल स्टडी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे आपने बायोडाइवर्सिटी पता थी जी, तो बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरी वाइड टर्म, आपको यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज। यस तो आप इन सबका मैंने आपको कहा मैम कि बायो इंडिकेटर्स में ज़्यादातर स्पेसिफाई करूँगी अपने सब्जेक्ट, कन्फाइन करूँगी बायो इंडिकेटर्स, जो कि मैंने काश के फूल का एग्जाम्पल आपको दिया। ठीक है, वो अलग हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें आप करेंगे क्या, ये मेडिसिनल स्टडी भी करेंगे क्या? इसमें मेडिसिनल स्टडी ही करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी है, कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी है, इसलिए मेडिसिनल वैल्यू जानने की ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़ा सा काम उनको बहुत ज़्यादा नहीं
जैसे बायोडाइवर्सिटी अपने आप में नहीं, मैंने कहा कि कन्फाइंड सेलेक्टेड आप स्पीशीज। एक बार करिए, अगर आप उसमें जाओगे लीजिए सेलेक्टेड स्पॉट ऑफ सेलेक्टेड स्पीशीज। तो मैडम कौन सा सेलेक्टेड स्पीशीज करें? वो आप देखिए, जिसकी आपको ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू पता आप चले। देखिए आप सेलेक्टेड नहीं, स्पीशीज वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर availability। बायोडाइवर्सिटी करता है वो जो आपका जो इंडिविजुअल्स जो आपको मिलेंगे या पॉपुलेशन पॉपुलेशन कितनी होगी उस हिसाब से जी कभी-कभी रेयर स्पीशीज की भी की जाती है। जी। रेयर स्पीशीज भी नहीं हो सकता है कि आप मोस्ट पॉपुलस, मतलब मोस्ट, या इस तरह से कहें एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल करके क्लासिफाइड कर दीजिए उसको। क्लासिफाइड। ये करो देखिए। और कितना सेलेक्ट करें मैम स्पीशीज? ये डिपेंड करता है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, when you are going for survey, तब आपको कितनी स्पीशीज बार बार आ रही है। हाँ, लोग कितने हाँ, जानते हैं? जैसे सपोज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तो आपको एक पूरे दिन के आपके सर्वे में 50 में से 40 लोगों ने बोला कि वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को यूज करते हैं किसी न किसी चीज़ में। तो आप उसको नोट डाउन करते हैं। तो मतलब मोस्ट पॉपुलस, मोस्ट Familiar. यूज्ड, मोस्ट फेमिलियर, वाइडली यूज्ड, क्योंकि हमें आज के फार्माकोलॉजी में यही बताना है, बॉटनी का यही काम है फार्मास्यूटिकल्स में, कि हमें उनको ये बताना है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है ना, तो वो हम कैसे बताएंगे, वो हमारी रिसर्च से ही पता चलेगा। आगे बताएं ना। So the methodology includes herbarium works, preparation of herbarium sheet. It is done by mounting of the species in the solution of mercury perchloride, which is 1.5%, ammonium chloride in ethyl alcohol, and then stitching is also done. Then identified and documentation is done. Then afterwards the labeling carries the following. टाइटल करके आगे बढ़ो। जी, आगे निकालिए। एक टाइटल कर दीजिए। summarize करेंगे। The study of flora is prepared on the study of site of the August listed. There are many species which is found in strictly to few seasons, which is categorized into herb, shrub and trees. Then categorization is done, recorded in the copy according to the type, habitat, place, date. Then collection is done, specimen in the mid and post monsoon. Then photography and video is taken, identification is done, and on the